Hello student, welcome again. This is your economics channel. Today's topic is features, problems and policies of Indian agriculture. It is the topic related to chapter of Indian economic development. Actually, first we have to know about the importance of Indian agriculture. Why we need to know about the agriculture in economics. हमें इकोनॉमिक्स में इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ये पहले हमें जानना है. Importance of Indian agriculture. There are some points which explain the importance of Indian agriculture. Now start. The contribution to GDP. Contribution to GDP. Now, the report of 2018 shows 14%, around 14% share in total GDP of agriculture sector. It shows the importance of agriculture now. अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स की जो शेयर परसेंटेज है वो 14% के राउंड में है. ये अभी भी एक इम्पोर्टेंस थिंग्स को बताता है. ये पहले से डेफिनेटली रिड्यूस हुआ है, बट फिर भी 14% जो कि बाकी सेक्टर्स में से बहुत सारे सेक्टर्स से अभी भी ये बहुत ज़्यादा है. सेकेंड थिंग्स, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स. वेज गुड्स लाइक wheat, rice, oil seeds, those goods supplied by agriculture sector and those goods necessary for all the people. ये बहुत ज़रूरी है इन सारे गुड्स, और इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है. नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इट इज़ द मेन पॉइंट. सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. आफ्टर इंडिपेंडेंस, most of people depends on agriculture sector. That time around above 70% people engaged in agriculture sector, but now 49% people are engaged in agriculture sector. It is also shows the importance of agriculture. Next, supply of raw material. Most of industries like sugar industry depends on sugarcane. Textile industry depends on cotton. Most of industry like cooking oil industries depends on oil seeds. Most of industry depends on agriculture sectors because agriculture sector provide raw material for them. That's why agriculture sector needed for us. Sources of demand for the industrial goods. इंडस्ट्रियल गुड्स, इंडस्ट्री जैसे ट्रैक्टर का प्रोडक्शन करती है, इंडस्ट्री कुछ मशीनरी प्रोडक्शन करती है. बहुत सारा मशीनरी एग्रीकल्चर सेक्टर भी परचेज करता है. तो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल गुड्स की सप्लाई का एक प्लेस है, मार्केट है जो इंडस्ट्रियल गुड्स को परचेज कर रहा है. नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड. अभी एटलीस्ट एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. अराउंड अबव 11.7% कंट्रीब्यूशन टू टोटल एक्सपोर्ट इन इंडिया, सच एज कॉटन, स्पाइस, कॉफ़ी, टी एक्स्ट्रा. ये सारे गुड्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में इंडियन एक्सपोर्ट में जो अमाउंट है उस अमाउंट में जो परसेंटेज शेयर है वो 11.7% अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर से है. ये इसके इंपॉर्टेंस को बताता है. नेक्स्ट, contribution to domestic trade. Agriculture also help
to domestic trade relation between one state to another state. Actually, agriculture sector help to growing domestic trade. Agriculture goods moving around the country. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक पार्ट से कंट्री के दूसरे पार्ट में जाता है और इसलिए ये स्टेट के बिजनेस को, डोमेस्टिक ट्रेड को भी बहुत ग्रो करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट, सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. सेम, जब ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगा कंट्री के, तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डेफिनेटली ग्रो करेगा. रेलवेज बल्क कैरी करता है एग्रीकल्चर गुड्स का, एज वेल एज रोडवेज से भी बहुत सारे एग्रीकल्चर गुड्स एक स्टेट से, एक प्लेस से अनदर प्लेस में जाते हैं. तो इससे जुड़े लोगों को रोजगार भी मिलता है और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बढ़ भी रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से. नेक्स्ट, वेल्थ ऑफ द नेशन. मोस्ट पार्ट ऑफ लैंड इन इंडिया related to agriculture sector. That's why agriculture sector are most important for us. Now I explain about the features of Indian agriculture. Actually, these are identity of Indian agriculture. First, low productivity. Productivity means production of food grain per hectare of land. The productivity of Indian agriculture compared to another country like China, USA, Canada and world average is very low. चाहे वो राइट्स में हो, चाहे वो वीट में हो, चाहे वो अदर किसी क्रॉप में हो. Next, disguised unemployment. Disguised unemployment refers to a situation when some people are engaged in a work more than their actual requirement. एक्चुअली ये जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बेसिकली इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है, जहाँ पे 4 लोगों की ज़रूरत है और वहाँ पे 8-10 लोग वर्क कर रहे हैं. उनकी प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट, डिपेंड्स ऑन रेनफॉल. मोस्ट ऑफ लैंड, मोस्ट ऑफ फार्मर्स डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, सो द प्रोडक्शन will be uncertain. In Indian agriculture, most of farmers depends on rainfall. There are no any facility about the irrigation. Next, subsistence farming. Subsistence farming means the farming activity for the consumption purpose, for their livelihood purpose. अगर लोग सिर्फ अपने जीने के लिए, अपने सिर्फ मामूली चीज़ों को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर या फार्मिंग करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में एग्रीकल्चर ज़्यादा डेवलप नहीं होगा. दैट मीन्स सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉमर्शियलाइजेशन. नेक्स्ट, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. द फार्मर्स, मोस्ट ऑफ फार्मर्स likely marginal and small farmers, they did not use the modern inputs. They use traditional inputs. That's why the production and productivity are very low. Small holdings. The size of holdings. Actually, according to the size of holdings, the farmers divided into 4 categories. Large farmers, medium farmer, small farmer and marginal farmer. Marginal farmer are those who have 1 hectare of land. 1 hectare of land. A small farmer holding more than 1 hectare, less than 2 hectares of land. Medium farmers holding more than 2 hectare but less than 10 hectare of land, and large or big farmers holding more than 10 hectare of land. Most of Indian farmer related to small, marginal and medium farmers. That's why the farming land is very small and fragmented. That's why the production and productivity is very low.
नेक्स्ट, लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट. There are most of areas where farming activity doing by tenant. इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज टीनेंट के द्वारा किया जा रहा है. मतलब जो लोग लैंडलेसनेस पीपल हैं, जिनके पास अपना लैंड नहीं है, वो दूसरों के लैंड में वो वर्क कर रहे हैं. दैट्स वाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड. वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्ट कलेक्टेड बाय लैंडलॉर्ड. बहुत सारा हिस्सा उस प्रोडक्शन का लैंडलॉर्ड के पास चला जाता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से भी इंडियन एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन लो होता है. नेक्स्ट, प्राइमेटिव टेक्नोलॉजी. मोस्ट ऑफ एरियाज डिपेंड्स ऑन प्राइमेटिव टेक्नोलॉजी. अभी भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग होती है. जो स्मॉल साइज है लैंड का, उसमें ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत लो है. ये सारे फीचर्स है इंडियन एग्रीकल्चर की, जिससे हम इजीली उसे आइडेंटिफाई. नाउ एक्सप्लेन अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. एक्चुअली देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन इंडियन एग्रीकल्चर, but there are few points which explain about the problems related to Indian agriculture. Lack of permanent means irrigation. There are most of land which no permanent irrigation facilities. Mostly more than 40% areas to suffer of permanent irrigation facilities. बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे अभी भी परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हुई है, जिसके कारण प्रोडक्शन बहुत कम होता है. ये सबसे पहला प्रॉब्लम में हम लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ फाइनेंस. डिफिशियंसी ऑफ फाइनेंस. मोस्टली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फेसेस डिफिशियंसी ऑफ फाइनेंस. उन्हें हमेशा फाइनेंस की जरूरत होती है, जो कि साहूकार महाजन ही पूरा करते हैं, जिसके वजह से वो हमेशा एक क्रेडिट में, एक क्रेडिट की नीड में हमेशा सफ़र करता है, और जिसकी वजह से उसे हमेशा एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. नेक्स्ट, कन्वेंशनल आउटलुक. द कन्वेंशनल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स. मोस्ट ऑफ फार्मर्स द कन्वेंशनल रिलेटेड टू कन्वेंशनल आउटलुक. फार्मर्स की जो आउटलुक है वो काफ़ी कन्वेंशनल है, वो काफ़ी मॉडर्न नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं, जिस कारण से वहाँ पे ज़्यादा प्रयोग नहीं हो पा रहे हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है. नेक्स्ट, स्मॉल एंड स्कैटर होल्डिंग्स. हमने इस टॉपिक पे बात की है पहले भी. इंडिया में जो मोस्ट ऑफ लैंड है वो स्मॉल साइज के हैं, और स्मॉल और स्कैटर्ड है, वो फ्रेगमेंटेड है, वो चारों तरफ बिखरा हुआ लैंड है, जिसकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स, एक फार्मर्स है जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, अगर वो एक जगह होता तो वो ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन कर पाता, बट वो 1 एकड़ उसके पास छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत जगहों पे बिखरा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो हो जाती है. नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेटिव इरिगेशन रिलेशंस. The relation between landlord and tenant. एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशन. जो वर्क करने वाले लोग हैं और जो ऑनर है लैंड का, दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो हेल्दी नहीं होकर वो एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशन है, जिस वजह से भी फार्मिंग बहुत ज़्यादा बेटर नहीं हो पा रही है. नेक्स्ट, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम. लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम. It's a main problem. That's why the farmers sell of their product in low price and they suffer distress sale. Distress sale क्या है? जब फार्मर्स को अपने फूड ग्रेन, अपने प्रोडक्शन किसी ऐसे लोगों को बेच देना पड़ता है जिससे उन्होंने कभी लोन या क्रेडिट लिया हो, और फिर वो प्रॉमिस करता है कि मैं अपना सामान आप ही को बेचूंगा, और जिसकी वजह से वो रेट डिसाइड नहीं कर पाता है और फार्मर्स को बहुत कम अमाउंट मिल पाता है, जिसे हम डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं. ये एक लैक ऑफ मार्केटिंग सिस्टम का
शो करता है, जिसकी वजह से फार्मर्स सफ़र करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने ये 3 चीज़ पढ़ा, फीचर्स, प्रॉब्लम्स और उसकी इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर सेक्टर्स की। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि पॉलिसीज़ क्या है गवर्नमेंट की जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर्स डेवलप हुआ है, और गवर्नमेंट ने क्या क्या, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, थैंक यू।